Hello everyone and welcome to our channel. It's spooky season and भाई मैं तो full ready होके बैठी हूँ like seriously. I am recording this voiceover while sitting with a full on face of Halloween makeup. क्यों भाई क्यों? I love Halloween. This is like literally my favorite month of the year. Even though sad scene, यह इंडिया में Halloween इतना मनाया नहीं जाता. But yes, I celebrate it on my own with a lot of spooky movies and dressing up as spooky characters. But I was so addicted to it that I went on and tried pumpkin spice latte. Damn that overpriced drink. क्यों क्यों मेरा जो पूरा वॉटपैड एमसी बनने का ड्रीम था ना वो पूरा कोलैप्स हो गया. इट वॉज दैट बैड. बट enough of my tragedies. Let's talk about horror. I know this time of the year सब अपनी horror fix ढूंढ रहे होगे and अगर वो anime है so it is a cherry on top. And so I thought let's talk about Mononoke. Not the Princess Mononoke from Ghibli. I love it but nah, this is a different one. Mononoke's anime series that was made in 2007 with a mix of horror, mystery, and surreal vibes. It is also visually very stunning. Plus, Netflix dropping Mononoke Phantom in the Rain very soon. So I thought, क्या perfect timing है to dive deep into this hidden underrated gem. The show follows a medicine seller जो एक बड़ा ही enigmatic character है who travels to feudal Japan, who fights vengeful spirits called as Mononoke. लेकिन जो चीज़ इस एनिमे को अलग बनाती है, it's how it blends traditional Japanese art styles like ukiyo-e and folklore to create a dreamlike yet disturbing world. तो अगर आप ready हो to explore one of the most unique and airy animes, तो stick around while we dive deep into this haunting world of Mononoke, a show that plays with your mind in ways you won't expect. Unlike most long running anime, Mononoke एक छोटे anthology series का part है. It is the prequel to Ayakashi Samurai Horror Tales, which was made in 2006. एंड फिर एक ईयर बाद डायरेक्टर केंजी नाकामुरा ने ये इंट्रूगिंग कॉन्सेप्ट को लिया और उसको एक फुल फ्लेज सीरीज में एक्सपैंड कर दिया. प्रोड्यूस्ड बाय टोई एनिमेशंस जो ज़्यादा मेन स्ट्रीम हिट्स लाइक ड्रैगन बॉल और वन पीस के लिए फेमस है, उनके लिए मोनोनोके काफ़ी अलग था. दिस इज 100% एन आउटलायर फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मीडिया वी नो टोई फॉर. और उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकल के नाकामुरा को पूरी फ्रीडम दी टू क्रिएट दिस विजुअली एक्सपेरिमेंटल एंड थीमेटिकली कॉम्प्लेक्स एनिमे. जब मोस्ट हॉरर्स मॉन्स्टर्स जंप स्केयर्स और वायलेंट कन्फ्रंटेशन पे डिपेंड करते हैं, मोनोनोके ये सब को छोड़ के एक बहुत ही स्लो अप्रोच लेता है अपने व्यूअर्स को इनवाइट करने के लिए टू डाइव डीप इनटू दिस इंट्रिकेट डिटेल्स of its world, its characters, और हर layer of meaning fully embedded in these supernatural stories. और शो का एपिसोडिक स्ट्रक्चर combined with its surreal art style उसको एक timeless quality देता है. Mononoke feels less like a typical TV show और ज़्यादा like a piece of art जो slowly unfold हो रहा है in front of your eyes with lots of symbolism, cultural references और एक strange uneasy feeling जो हर फ्रेम में रहती है, but you can't pinpoint what is that feeling about. जब आप मोनोनोके देखना स्टार्ट करोगे तब आप ये नोटिस करोगे कि how visually different मोनोनोके is from any anime you have seen before. इसका unique art style heavily inspired from traditional Japanese art from especially ukiyo-e and kabuki theater that gives this show a visual identity जो एकदम अनफॉरगेटेबल है. उकियो-ई का मतलब है पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड और ये पॉपुलर आर्ट फॉर्म है जो एडो पीरियड के टाइम बहुत फेमस था जापान में.
ये वुड ब्लॉक प्रिंट्स में डेली लाइफ, लैंडस्केप्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिपिक्ट करता है, लेकिन जो चीज़ इसे स्पेशल बनाती है वो है हाउ इट कैप्चर्स द ब्यूटी ऑफ फ्लीटिंग मोमेंट्स। इन मोनोनोके उकियो-ई का इन्फ्लुएंस हर फ्रेम में आपको दिखेगा, फ्रॉम द फ्लैट टू डायमेंशनल कॉम्पोजिशन टू द बोल्ड अननेचुरल कलर पैलेट्स। जब आप ये शो देखते हो इट फील्स लाइक यू आर वॉकिंग थ्रू अ लिविंग वुड ब्लॉक पेंटिंग। पर मोनोनोके सिर्फ विजुअली स्टनिंग नहीं है, इट्स डिजाइन टू मेक यू फील अनईजी। द फ्लैट विजुअल्स, मिनिमम पर्सपेक्टिव और unnaturally bright colors all combine to create an airy, dream-like atmosphere. सब कुछ विजुअली थोड़ा ऑफ लगेगा, जैसे कोई ब्यूटीफुल येट अनसेटलिंग वर्ल्ड में आप घुसे जा रहे हो। और फिर आता है कबूकी थिएटर का इन्फ्लुएंस। कबूकी के एक्सैजरेटेड मूवमेंट्स, ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस और एलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स भी मोनोनोके के कैरेक्टर्स को शेप करते हैं। द मेडिसिन सेलर खुद फील होता है जैसे एक कबूकी एक्टर विद हिज स्लो डेलिब्रेट मूवमेंट्स और इनस्क्रूटेबल डिम्योर। उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी है टू मेक अदर कैरेक्टर्स एंड द ऑडियंस फील अनकंफर्टेबल। टुगेदर उकियो-ई और कबूकी के इन्फ्लुएंस कंबाइन करके एक विजुअल लैंग्वेज बनाते हैं that is visually beautiful and thematically unsettling। ये हमें एक वर्ल्ड में ले जाते हैं जो फेमिलियर और एलियन दोनों लगता है, a place where reality and supernatural के बीच की बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है। पहली चीज़ जो इस शो को अननर्विंग बताती है वो है इट्स डिसओरिएंटेशन। हर आर्क सेम बेसिक फॉर्मूला फॉलो करता है। मेडिसिन सेलर अपीयर्स, एक मोनोनोके इमर्जेस एंड उसका ट्रुथ धीरे धीरे रिवील होता है। लेकिन जो बात अलग है वो है द डिटेल्स दैट शिफ्ट। मोनोनोके कभी भी वैसे नहीं होते जैसे हमें लगा होगा स्टार्टिंग में, और जो लोग मोनोनोके से हॉन्ट हो रहे हैं वो भी कभी इनोसेंट नहीं होते। और जो मेडिसिन सेलर है सिर्फ फोर्स से स्पिरिट को डिफीट नहीं करता, उसे उसकी शेप, ट्रुथ और रीजन डिस्कवर करनी पड़ती है बिफोर ही कैन एक्सरसाइज देम। और यहीं पे रियल हॉरर शुरू होता है। ईच मोनोनोके इज डीपली बरीड इमोशंस दैट आर लिंक्ड विद गिल्ट, रिग्रेट, हेट्रेड या फियर। ये स्पिरिट्स उन इमोशंस का फिजिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। एंड एज द मेडिसिन सेलर उन स्पिरिट्स के पीछे के ट्रुथ को अनकवर करता है, कैरेक्टर्स को अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सेल्फ्स को कन्फ्रंट करना पड़ता है। मोनोनोके को देखना जैसे ह्यूमन के साइकी के लेयर्स को पील करना हो। हर सरफेस के नीचे कुछ अनकंफर्टेबल या डिस्टर्बिंग चीज़ छुपी होती है। शो हमें फोर्स करता है to sit with human feelings, the guilt we carry, the emotions we suppress, और वो mistakes जो हम सब करते हैं that makes us flawed yet beautiful humans. And because the Mononoke are born from these secrets, the horror feels personal. ये सिर्फ supernatural का डर नहीं, it's about being afraid of what's inside you. और जो चीज़ मोनोनोके को ज़्यादा पावरफुल बनाती है वो है इसका पेसिंग और एटमॉस्फेयर। इट माइट सीम स्लो बिकॉज इट इज डेलिबरेटली गिविंग यू द टाइम टू फील एवरी अनईजी ग्लैंस, एवरी फ्लिकर ऑफ फियर या टेंशन दैट ग्रेजुअली बिल्ड्स, जब तक इट फील्स लाइक यू आर सफोकेटिंग। बिकॉज द शो इज सो क्वाइट, हर स्मॉल साउंड एम्पलीफाइड लगता है, हर मोमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगता है। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ ये है, मोनोनोके आपको ये चीज़ क्वेश्चन करने पे मजबूर करता है, व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट। द विजुअल स्टाइल विद सरियल लैंडस्केप और फ्लैट कलर्स आपको एक सेंस ऑफ नॉट नोइंग व्हाट्स रियल और वर्स नोइंग द रियल हॉरर कम्स फ्रॉम विद इन यू। दैट मेक्स मोनोनोके so terrifying.
जब एटमॉस्फेयर की बात आती है, मोनोनोके का साउंड डिज़ाइन पूरा गेम चेंजर है। विजुअल्स तो अपनी जगह अमेजिंग ही है, लेकिन इस एनिमे का साउंड और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। टू क्रिएट टेंशन एंड फियर, द सीरीज यूजेस ट्रेडिशनल जापानीज इंस्ट्रूमेंट्स टू सेट द हॉरर टोन। ये म्यूजिक स्पेयर्स है, मतलब बहुत कम, मिनिमलिस्टिक और बस टेंशन यूज करने के लिए बिल्ड करता है। और अगर आप लोगों को लगता है ये बैकग्राउंड स्कोर की बात है, तो लेट मी टेल यू, मोनोनोके यूजेस साइलेंस इक्वली टेरिफाइंगली। बहुत सीन्स है जिसमें एक एरी साइलेंस होता है और फिर एक छोटी सी सटल आवाज स्लोली कम्स इन, जो एक अनईज क्रिएट करता है, जिसमें एक हल्की सी पेपर का रसल हो या फिर डोर का स्लो क्रीक जो सडनली ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। ये सारी स्मॉल डिटेल्स आपके माइंड में एक सीड प्लांट करते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। समथिंग इज लर्किंग विद इन द समथिंग इज लर्किंग विद इन द शैडोज, बट आपको समझ नहीं आएगा क्या। अब आते हैं वॉइस एक्टर पे, ताकाहिरो साकुराई, जो मेडिसिन सेलर का रोल प्ले कर रहे हैं। उनका परफॉर्मेंस पूरे शो के मूड को सेट करता है। उनकी काम, ऑलमोस्ट इमोशनलेस वॉइस डिलीवरी बाकी कैरेक्टर्स के फियर और पैनिक के कॉन्ट्रास्ट में एकदम अलग लगती है। जब वो बोलते हैं तो यू कांट हेल्प बट लिसन क्लोजली, क्योंकि उनकी प्रेजेंस और वॉइस इतनी मैग्नेटिक है। साकुराई की वॉइस और मेडिसिन सेलर का कोल्ड डिटैच डिम्योर उसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस येट क्रीपी बना देता है। तो दोस्तों, मोनोनोके इज मोर देन जस्ट एन हॉरर एनिमे, इट्स अ लिटिल पीस ऑफ आर्ट। ये एनिमे ट्रेडिशनल जापानीज एस्थेटिक्स को मॉडर्न हॉरर के कॉम्प्लेक्स के साथ ब्लेंड करता है इन अ वे जो आज तक किसी और एनिमे ने शायद ही किया होगा। इसकी यूनिक विजुअल स्टाइल, कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग और हॉन्टिंग साउंड डिज़ाइन इसको बाकी हॉरर एनिमे से काफ़ी अलग बनाते हैं। और हाँ, ये एनिमे सबके लिए नहीं है, और अगर आप इसे देखने का फैसला ना करो तो भी मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी, बट मैं आपको ब्लेम इसलिए करूँगी कि आप ही वो रीज़न हो जिसके वजह से हमें अच्छे एनिमे इसकी तरह मिलते नहीं हैं। ये शो काफ़ी स्लो है विद एब्स्ट्रैक्ट नैरेटिव और वेरी डेंस सिंबलिज्म। सब व्यूअर्स को अपील नहीं करेगा, बट अगर आप पेशेंट हो और अगर आपको एक्सपेरिमेंटल स्टोरी टेलिंग और डीप ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है तो मोनोनोके विल रिवॉर्ड यू। इट्स अ शो जो आपको फोर्स करता है टू कन्फ्रंट डार्क unsettling truths about human nature. So, if you're a horror fan or looking for a psychological thriller, Mononoke is the anime for you. ये सीरीज एक haunting, thought-provoking experience है जो आपको शो खत्म होने के बाद भी हॉन्ट करेंगी। तो इस Halloween, sit back, turn off the lights और let Mononoke take you on a journey which will stick with you for a lifetime. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया, मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच एनिमे अपडेट्स। तब तक के लिए योर होस्ट एली साइनिंग ऑफ। बाय।